Good morning, student. Today we are going to learn how to prepare working note. How to prepare working note. Okay. So before that, we just I need to read the question, and we will solve by using the working note. Right? KD Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each, payable as follows: 3 on application, 5 on allotment, and balance on first and final call. Applications were received for 82,000 shares. The director resolves to allot as category A, applicant of 30,000 shares, allotted 20,000 shares, applicant of 50,000 shares, allotted 40,000 shares. The category C, applicant of 2,000 shares, they will not allotted anything. Okay, we just rejected. Ramesh, actually is a shareholder, Ramesh, who applied for 900 shares in category A, and Suresh, who allotted 600 shares in category B, failed to pay allotment money. Calculate the amount received on allotment. So this is the question. So note the key points, key informations which is very useful for the solving question. So how many shares were issued? 60,000 shares were issued. How many shares were received? 82,000 shares were received. So it means it is over subscription. We issued 60, but we received 82,000. So we received how much? We received extra. We received extra 22,000 shares. We received excess. Right now, the face value of the share is this, how much? 10 rupees. 5 plus 3, 8 plus 2, 10 rupees is the face value. And the director decided to adjust the excess money in the following category. So they plan to, those who apply 30,000 shares, they plan to give only 20,000 shares. Okay, and those who applied for 50,000 shares, how much share will be allotted? Only 40,000 shares will be allotted. And the category 3, lastly, those who applied lastly 2,000 shares, they will not allotted anything, because as it is, issued amount is full covered, finished. There's no shares left with us. So we just rejected all the excess applications, right? So after that, it's noticed that Mr. Ramesh, the shareholder, he failed to pay allotment money. He failed to pay allotment money, and Suresh is also a holder. He is allotted for 600 shares. How many shares he applied, we don't know. You have to prepare working note on that. So he also didn't pay allotment money. Now, what is asked in the question? They asked to prepare calculate the amount received on allotment. कितना पैसा हमने allotment में receive हुआ? Because Ramesh and Suresh didn't pay that amount. No, that amount we might not received. So how much exact amount we received on allotment? That thing has to calculate. So this type of questions may be asked for 1 or 2 mark questions. Okay? So for that we have to prepare working note. So how to prepare working note? Just learn working note. Working note. After preparing working note only, we can move to the problem, right? So in working note, we have to check what are the main informations, that Ramesh is the holder and Suresh is the holder. So starts with Ramesh. Ramesh से start करिए. Ramesh. Okay. So Ramesh apply किया कि allot किया हुआ है? It is given applied. So applied is given. So Ramesh applied for how many shares? Applied for 900 shares. Okay. So in which category it is given? Ramesh is in the category of A. Category A. This is the category A. So category A में ratio निकालिए. Category A में ratio जो है, those who applied 30,000 shares will be allowed only 20,000 shares. So what is the category? Cut करिए, ratio निकालिए. 3:2. It means that those who applied 3 shares, we will be allowed only 2 shares. जो 3 शेयर अप्लाई करते हैं उनको हम लोग कितना शेयर्स हम लोग अलॉट कर रहे हैं? ओनली 2 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. सो रमेश कितना अप्लाई किया? 900 शेयर्स. तो कितना मिला होगा?
to calculate Ramesh allotted. Ramesh allot कितना किया होगा, कैसे निकालेंगे, 900 divided by 3 into 2, right? So 600 shares. He applied for 900 shares, but we give only 600 shares, right? समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट आगे जाएंगे. So he applied for 900 shares means how much money may received from Ramesh. कितना पैसा हम लोग रिसीव किए होंगे रमेश से. So application money received, important फॉर्मेट है, उसे मैं आपको लिखवाया था. application money received from Ramesh. कितने रिसीव किए होंगे, अप्लाई जो किया था, अप्लाई कितना किया था, 900 किया था. So application money कितना है, 3 rupees है. So 900 into 3, 2700 पैसा हम लोग 2700 रुपीज जो है भी हम लोग रमेश से रिसीव किए होंगे, राइट? ओके. नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड. कितना एप्लीकेशन मनी अभी जरूरत है, एक्चुअली कितना अप्लाई किए थे, 900 शेयर्स. कितना अप्लाई किए थे, 900 शेयर्स, और कितना पैसा हम लोग चाहिए, एक्चुअली 600 शेयर्स में ऑर्डर किए हैं. तो 600 into 3, 1800 ही चाहिए हम लोगों को. कितना बेच दिया था, 2700. हाउ मच मनी एक्चुअली वी रिक्वायर्ड, 1800. सो हाउ मच मनी इज पेड एक्स्ट्रा, हाउ मच मनी इज लाइंग विथ अस, कितना पैसा बैलेंस है अभी, माइनस करिए 900. ये बैलेंस अमाउंट जो है किसका पैसा है, रमेश का पैसा है. किसका पास है, हमारे पास है. ये पैसा हम वापस करके वापस दोबारा अलॉटमेंट में लेना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो हम लोग ये पैसा को क्या करेंगे, आने वाला अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे. तो रमेश को एप्लीकेशन बांधना पड़ेगा, अलॉटमेंट बांधना पड़ेगा, और फर्स्ट कॉल भी बांधना पड़ेगा. सो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा बांध दिया था, वो पैसा को हम लोग किस में यूज करेंगे, अलॉटमेंट में यूज करेंगे. सो वी हैव टू राइट हियर लेस allotment due. Allotment due. Ramesh has to pay, how many shares were allotted, 600 shares. 600 into what is allotment money, 5. So he has to pay 3000 during allotment, but he need not to pay 3000 because his money is lying with us. No, how much is money is lying with us, 900. So deduct it, 2100 has to pay. So रमेश को कितना बांधने से बचता है अमाउंट, 2100 बांधने से बचता है, क्योंकि 900 जो है पहले से ही वो दिया हुआ था. तो 3000 बांधते हैं अलॉटमेंट में, 900 का पैसा पहले ही बचा हुआ है, माइनस करके 2100 ही बांधना था. वो पैसा रमेश बांध नहीं पाया. दिस कॉल्ड कॉल्स इन अरियर. इतना ही बांधना था, लेकिन रमेश जो है बांध नहीं पाया. So allotment arrear or calls in arrear we can say. So this amount is calls in arrear in respect of Ramesh. And one more person is there, no? रमेश के बाद कौन है, सुरेश. So सुरेश को चेक करिए, सुरेश में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सुरेश अलॉटेड दिया हुआ है, यहाँ अप्लाइड दिया हुआ था. तो हम लोग क्या निकाले, अलॉटेड निकाले. यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा, या क्या दिया हुआ, अलॉटेड दिया हुआ है. सो वी हैव टू जस्ट चेक फॉर अप्लाइड, तभी हम लोग डिफरेंस बैलेंस अमाउंट मालूम होगा. सो स्टार्ट विथ सुरेश. सुरेश सुरेश क्या दिया हुआ, अलॉटेड दिया हुआ. अलॉटेड हाउ मच, 600 शेयर्स, राइट. सो कौन सा कैटेगरी, कैटेगरी क्वेश्चन में देखिए कैटेगरी बी है. सो कैटेगरी बी कौन सा होगा, 50,000 और 40,000 का कैटेगरी, दैट इज 5:4. व्हाट इट मीन, बताइए, ट्राई करिए. 5:4. दोस्त हु अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स वी विल अलाउ ओनली 4 शेयर्स. जो 5 शेयर्स अप्लाई कर रहा है उनको हम लोग 4 शेयर्स ही दे रहे हैं, राइट. अभी सुरेश को अप्लाई करिए. सुरेश को कितना अलॉट किया गया है, 600 शेयर्स अलॉट किया गया है. तो कितना अप्लाई किया होगा वो, 600 shares apply नहीं किया सुरेश. 600 shares company allot 600 shares. So how much he might applied? So to know we have to prepare like that. Suresh applied for, Suresh applied for, क्या करना है,
600 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 600 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 कितना होगा 750. So Suresh actually applied for 750 shares. So due to oversubscription, we compelled to allot only 600 shares. वो 750 shares apply किया था सुरेश, लेकिन हम लोग उतना दे नहीं पाए. How much we gave? Only 600 shares. So same format apply करिए. Application money received कितना? Application money received कितना 750 into application money, 750 into application money 2250. Then application money required, how much we allotted? We allotted only 600 shares, so 600 into 3, 1800. So Suresh 2250 रुपीज बेच दिया था, लेकिन कितना लोग उसको यूज किए उनका पैसा को 1800 यूज कर पाए. सो उनका पैसा कितना बच गया है 450 बैलेंस हो चुका है. ये पैसे को क्या करेंगे बताता है मैं क्या करेंगे. what the money can be used for the further installment, for the next installment. So application के पैसा को कहाँ यूज करेंगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अलॉटमेंट ही होगा. So we have to just use that money in allotment. So you have to write less allotment due. Allotment due. So इसका कितना allotted हुआ है? 600 shares allot हुआ है और allotment money is 5. So 6,000 into 600 into 5, 3,000. So सुरेश को 3,000 रुपीज अलॉटमेंट में बांधना पड़ेगा, लेकिन उतना बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि 450 रुपीज पहले से ही एडवांस दिया हुआ है. सो कितना बांधने से बचता है 2550 बांधने से बचता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुरेश कुड नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट, सो दैट्स बिकम अलॉटमेंट और कॉल्स इन अरियर. कॉल्स इन अरियर. So during the time of allotment, Ramesh and Suresh, both the person could not able to pay. Ramesh could not able to pay 2,100 and Suresh could not able to pay 2,550. So कितना नहीं मिला पैसा हम लोगों को 2,100 रमेश का और सुरेश का 2,550. So कितना हो जाता है 4,650 जो है टोटल अलॉटमेंट में अरियर है. What is arrear? Arrear means due. इतना पैसा लोग रिसीव नहीं हो पाया. सो कंपनी अकाउंट में जो वर्किंग नोट को टफ मानते हैं, आप वर्किंग नोट सीख जाएंगे, आप कंपनी अकाउंट बहुत इजी लगेगा. वंस अगेन आई रिपीट इट, कैसा हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिए. ओवर सब्सक्रिप्शन में वर्किंग नोट का प्रॉब्लम ज्यादा होगा क्योंकि अप्लाइड ज्यादा कर लेते हैं, अलॉट कम शेयर्स मिल जाता है, पैसा बच जाता है और पैसा को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. सो स्टार्ट. मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं. यहाँ देखिए क्या कैसा प्रोसीजर क्या है. पहले क्वेश्चन में चेक करना है whether applied is given or allotted is given. Whether applied is given or allotted is given. ये in this case रमेश applied दिया हुआ है, so हम लोग क्या निकालना पड़ा? allotted निकालना पड़ा. कैसे निकालना पड़ा? सो जो कैटेगरी दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ कैटेगरी, वो कैटेगरी को प्रोरेटा निकालना पड़ेगा. यहाँ में फर्स्ट कैटेगरी दिया हुआ है. कैटेगरी में कितना दिया हुआ है? दोस्तों अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, वी अलॉट ओनली 20,000 शेयर्स. इट मींस दैट प्रोरेटा इज 3:2. जो 3 शेयर्स अप्लाई करता है उसको कितना शेयर्स दे रहे हैं हम लोग? 2 शेयर्स ही दे रहे हैं. राइट. सो यहाँ पर रमेश कितना अप्लाई किया? 900 शेयर्स अप्लाई किया. तो कितना अलॉट किया होगा? क्वेश्चन में दिया नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट 900 डिवाइड बाय 3, दैट इज अप्लाइड शेयर, दिस इज अलॉटेड शेयर. 900 अप्लाइड डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू अलॉट करने से ऑटोमेटिकली अमाउंट मिल जाएगा. 900 डिवाइड बाय 3 इनटू 2, 600 शेयर अलॉटेड हो चुका है. सो अप्लाइड भी मिल चुका है, अलॉटेड भी मिल चुका है. स्टार्टिंग में क्या करेंगे? अप्लाइड से एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई करिए. अप्लाइड 900 इनटू एप्लीकेशन मनी 3,
2700, फिर अलॉटेड कितना किया है 600 इंटू 3 1800, सो 900 रुपीज जो है एक्स्ट्रा रमेश बांध दिया है, वो पैसे को हम लोग किसमें क्या करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। सो जो रमेश को अलॉटमेंट में कितना बांधना था, एक्चुअली अलॉटेड से मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट में, 600 इंटू 5 3000 बांधना था, 3000 अभी बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पैसा पहले से ही बांधा हुआ है, एडवांस मिला हुआ है 900, सो माइनस करने से 2100 we might received, but unfortunately Ramesh could not able to pay that amount, thus become arrear. So the same way सुरेश इसमें क्या दिया हुआ है, सुरेश अलॉटेड दिया हुआ है, अप्लाइड दिया नहीं था, ठीक है। सो अलॉट कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अप्लाइड कितना है पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सो हमें निकालना पड़ेगा। सो कैटेगरी क्या दिया हुआ है, कैटेगरी बी दिया हुआ है, बी मतलब दोज हु अप्लाइड 50,000 shares we allot only 40,000 shares, so it becomes 5:4, it means those who applied 4 shares we will give only those who applied 5 shares those we will give only 4 shares, right। so ये अलॉट कितना किया है 600 किया हुआ है, तो 600 डिवाइडेड बाय 4 अप्लाई इनटू अप्लाइड शेयर 5, सो 750 अप्लाई किया था, हम लोग कितना दे पाए ओनली 600 ही दे पाए, तो 750 अप्लाई किया होता तो पैसा भी बेचता था उतना, 750 इंटू एप्लीकेशन में 3 रुपीज 2250 बेच दिया, लेकिन हम लोग उतना दे नहीं पाए, सो 600 दे पाए, तो 600 इंटू 3 1800 हम लोग यूज कर पाए उसका पैसा को, सो उनका पैसा एक्स्ट्रा बच गया हम लोगों के पास 450 रुपीज, दैट अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट में क्यों ड्यू कितना है चेक करने के लिए हम लोग क्या किए, अलॉटेड से अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई किए, 600 इंटू 5 3000 बांधना था उसको, 450 पहले बांधा हुआ है, सो उसको एक्चुअली कितना नेट बांधना था, नेट अमाउंट 2550 बांधना था, लेकिन कुछ कारणवश वो बांध नहीं पाया, this become calls in arrear। So total how many shareholders didn't pay that amount? There are 2 shareholders, one is Ramesh and another one is Suresh, both of them didn't pay 4650, ठीक है, ये वर्किंग नोट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे, मतलब हम लोग क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना हुआ है। मैं एक प्रॉब्लम को मैं क्या एक नॉर्मल जर्नलिस्ट द्वारा सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट वे में भी सिखाऊंगा, जर्नलिस्ट वे में हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, हम लोग अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ, क्योंकि ये पैसा तो नहीं मिला, सो इसे माइनस करना पड़ेगा, सो जो माइनस करने से पैसा मिल जाएगा हम लोग को। सो लेट मी एक्सप्लेन थ्रू जर्नल एंट्रीज, आफ्टर दैट वी कैन डू द सेम प्रॉब्लम थ्रू शॉर्टकट मेथड, राइट। Now go through the question, how many shares were issued, how many shares were received, and then working notes, and we have to use the working notes during the time of allotment, and we may get the answer after deducting that amount from the allotment due, got it? So let's start with the journal entries, right? This is the format, you know. Date, particulars, ledger folio, amount, KD Limited, no, KD Limited, journal entries, date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. Okay, so let's start with the normal way of solving problem. We start with the application money. So what is the first entry, you know? Yes, bank account debit, bank account debit to share application account. So क्या करना पड़ेगा, how many shares were issued 60, how many shares were received
82। मैं क्या बोला, इतना याद रखिए, कोई भी एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में अप्लाइड से ही मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ मच शेयर्स वर रिसीव्ड, दैट इज अप्लाइड मींस रिसीव्ड। हाउ मेनी शेयर्स वर रिसीव्ड, 82,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। सो 82,000 शेयर्स का पैसा आया होगा, सो 82,000 इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी इज 3, नो या एप्लीकेशन मनी इज 3, सो कितना पैसा रिसीव होगा, 82 into 80,000, 82,000 into 3, 2,46,000, 2,46,000 रिसीव हो चुका है। सो नरेशन क्या लिखेंगे, ट्राई करिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 82,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 each, राइट। सो सेकंड एंट्री बताइए, कोशिश करिए। सेकंड एंट्री करते वक्त बहुत ध्यान देना है आपको। हाउ मेनी शेयर्स वर इश्यूड, 60। हाउ मेनी शेयर्स वर रिसीव्ड, 82। सो हमने बैलेंस अमाउंट क्या किए, वापस किए कि एडजस्ट किए, क्वेश्चन में दिया होगा सब कुछ, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बैलेंस अमाउंट को क्या किया हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ एडजस्टमेंट हुआ है, कैटेगरी ए में एडजस्टमेंट हुआ है, कैटेगरी बी में भी एडजस्टमेंट हुआ है, कैटेगरी सी में रिटर्न हुआ है। सो एडजस्टमेंट भी हुआ है और रिटर्न भी हुआ है। सो एंट्री क्या होगा, दो नया एंट्री ऐड होगा। रिटर्न क्या है, सो यू हैव टू राइट टू बैंक, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट यू हैव टू राइट टू अलॉटमेंट। एंट्री याद है, क्या एंट्री लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इज अ नॉर्मल एंट्री। जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है यही एंट्री हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग क्या किए, जो एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट किए हैं। सो किस में एडजस्ट करेंगे, एप्लीकेशन के पैसे को कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। सो यू हैव टू राइट हियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। And lastly, in the category C, we refund the amount. We didn't allot anything, so it means that we have to refund that amount. So refund कितना किए हैं, so निकालेंगे। So उसमें बैंक को हम लोग क्रेडिट करना है। So the entry is share application account debit to share capital, and for adjustment we have to write to share allotment. For return that amount we have to write to bank account. Very important entry, right? So amount कैसा आएगा, अमाउंट एप्लीकेशन ऊपर कितना अमाउंट था, 2,46,000। ये अमाउंट कैसा आया, दैट इज 82,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। गॉट इट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या बोला, कोई भी इश्यू से मल्टीप्लाई करना। कहां पर शेयर कैपिटल आता है, वहां इश्यू से ही मल्टीप्लाई करना। इश्यू कितना है, 60,000। सो 60,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, हाउ मच, 1,80,000। ठीक है। सो 1,80,000 नहीं मिलना है, कितना मिल चुका है, 2,46,000 मिल चुका है। सो एक्स्ट्रा कितना मिल चुका है, 66,000 जो है एक्स्ट्रा मिल चुका है। सो 66 को हम लोग क्या करना है, यहाँ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देखो, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, 10,000 शेयर्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, 10,000 शेयर्स। टोटल कितना एक्स्ट्रा शेयर्स को हम लोग एडजस्ट किए हैं, 20,000 शेयर्स को एडजस्ट कर दिए। कितने शेयर को एडजस्ट कर दिए, 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी इज 3, सो 60,000 को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं। वी एडजस्टेड 20,000 शेयर्स। कैटेगरी ए में देखिए गैप कितना है, 10,000 शेयर्स, और कैटेगरी बी में देखिए गैप देखिए 10,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स को हम लोग किस में एडजस्ट किए हैं, आने वाला अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं। तो 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज जो है किसमें यूज हो चुका है, अलॉटमेंट का अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, राइट। सो लास्टली कितना है, रिटर्न कितना करना है, 2,000। सो 2,000 इंटू 3, सो कितना होता, 6,000। ऐड करिए, 1,80,000, 2,40,000, 2,46,000। सो क्लियर। डोनेशन क्या होगा, being application money transferred to share capital and the balance amount is adjusted and 2,000 shares were refunded. शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना है आपको, नरेशन लिखना जरूरी है, लेकिन नरेशन मैं तो छोड़ रहा हूं यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्पेस के कारण, आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा नरेशन। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, being share application money transferred to share capital and the balance 20,000 shares were adjusted in allotment and 2,000 shares were refunded. क्लियर, ओके। भाई मेन एप्लीकेशन का काम तो हो चुका है, नेक्स्ट काम क्या है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट है। सो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री बताइए, शेयर
allotment account debit, share allotment account debit to share capital, to share capital. अमाउंट लिखने में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ रिसीव से मल्टीप्लाई करना है, बाकी जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबसे इश्यू से मल्टीप्लाई करना है. और many shares were issued? 60,000 shares were issued. So 60,000 into allotment money is 5. That is 3 lakh is receivable. How many monies were receivable? अलॉटमेंट में कितना मिलना बाकी है हम लोग को? 3 लाख मिलना बाकी है. तो नरेशन लिखिए, क्या होगा? वेरी गुड, वो आप अच्छे बच्चे हैं, आप तो अभी आराम से बोल पाएंगे. बताइए नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऐसा लिख सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट, यही है आंसर. क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट. अभी ये दो मेथड है, कॉल्स इन अरियर्स को शो करना या रिकॉर्ड करना, या बिना कॉल्स इन अरियर को शो करके भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पर शो करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यहां पर अमाउंट कितना आएगा देखिए, और ड्यू कितना है? 3 लाख ड्यू है. 3 लाख में यहां देखिए 3 लाख में पहले से ही 60,000 मिल चुका है, एप्लीकेशन में ही मिल चुका है. 3 लाख मिलना था, 3 लाख में एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा मिल हम लोग ले लिए. सो पैसा को हम लोग किस में एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. तो 3 लाख ड्यू है, 3 लाख में 60,000 पहले ही मिल चुका है. अभी कितना मिलना बाकी है? 3 लाख माइनस 60,000, सो कितना बाकी है? 2,40,000 बाकी है. ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है अलॉटमेंट में, सो दोबारा तो नहीं देंगे हम लोग. सो 2,40,000 है. 2,40,000 में कितना एरियर है? और वर्किंग नोट किए थे ना, कितना था एरियर? रमेश का 2,100 और सुरेश का 2,550, 4,650 बाकी था. तो यहां लिखना है कॉस्ट इन एरियर 4,650. इसलिए मैं वर्किंग नोट की. वर्किंग नोट कहां यूज होगा? यहां पर यूज होगा. ठीक है. सो 2,40,000 में रमेश और सुरेश तो देंगे नहीं पैसा, माइनस कर दीजिए. तो कितना पैसा आया होगा? 2,35,350. 2,35,350 is the amount received on allotment. ठीक है. क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं. कितना? 2,35,350. अभी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इतना तो नहीं करना आपको, इतना करना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना. ये मैं आपको सिखाने के लिए, एंट्री को सिखाने के लिए मैं दोबारा आपको फॉर्मेट में सिखा रहा हूं. मान लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि हाउ मनी इज रिसीव, हाउ मनी व्हाट इज अलॉटमेंट मनी रिसीव करके दिया हुआ है, तब क्या करें? इतना करने की जरूरत नहीं है. तो क्या करना है आपको? सिंपली अलॉटमेंट ड्यू निकालना है. शॉर्टकट मेथड है. अलॉटमेंट ड्यू निकालना है, दैट इज 60,000 इंटू 5, 3 लाख लिखना है, लेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अर्लियर. कितना? 60,000 पहले मैच करते ही हम लोग. सो 2,40,000 जो है रिसीवेबल है, इसमें लेस कॉल्स इन एरियर 4,650. सो 2,35,350 का लिखकर आंसर को शो करना है. When the question is asked for 1 mark question या 2 mark question, तब ये शॉर्टकट मेथड में कर सकते हैं for immediate calculation of that amount. In case of comprehensive problem, we have to solve by this way, right? So this is the way of solving problem. Working note कैसे ऐसे ही करना है. ठीक है. This is about over subscription, right? नेक्स्ट टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन है. सो ओवर सब्सक्रिप्शन तो जानते हैं. व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हेन शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन द इश्यू, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? इसको उल्टा है. So when shares are received less than the applied, then that is called under subscriptions.
सो नेक्स्ट क्लास में हम अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे और शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन बाय।